Hello, dear student. Hope you are doing well. I'm also good. So I am here again in this video. Welcome back in this video. So in this video, I'm going to discuss the best five examples that is based on the set theory, uh, like domain. We will discuss the domain, and we will work and we will solve some questions related to relations, basically in the set theory. Okay, so these five questions are going to help you in your preparation. So I hope you have to understand these five questions. Firstly, I am going to recap all the this is the type of example. I have taken that example from the book, and that is very important. So the first question is domain. I am going to find the domain of this question function. The second question is on based on the relations. Okay, so we will discuss. And third is we are going to find the domain, and the next is also in the set theory example, and the last is based on the um, basically in the we can understand by the Venn diagram. Okay, so we these are the five questions, very important. So let's discuss without any delay. Okay, so in this first example, please take as a first example, example number one. Okay, so what is the domain of the function? So the function is this: y cos inverse 1 minus 2x upon 4x. Basically, I can say y. Y is defined from dt, where dt is a subset of r to r. Then find the dt. ये मेरा सवाल है. This is my question. Find the d, d of y, because I'm defining y as a map. So this is dy. Okay, what is dy? So let's discuss dy. So before finding the dy, or before finding the x, because my y is defined like y is equal to cos inverse 1 minus 2x upon 4x. So have you any idea to solve this? Okay, so for finding any kind of domain, you have to understand whether a function is defined on that values or not. So we have four options in the type of interval. So what will be the answer? So see, for defining cos inverse x, what is the condition of cos inverse x? Cos inverse x, before understanding cos inverse x, how is the function of cos x? Cos x. Cos x is the periodic function. Periodic function means it is defined like this. Yes, it is defined like this. Okay, so for I hope you have idea about the inverse of the cos, because in the 0 to pi function is 1 1 and on 2. So we can define cos inverse x, in which the domain will be 1 and minus 1. Okay, and the range will be 0 to 2 pi. Okay, so your function will be like this. Okay, when you will put here cos inverse 1, it means when you will put here 1, so it means cos inverse 1 cos 0, and this is 0. So it means here 0 at this is my suppose cos inverse x, and what is the function of 1, y of 1? Y of 1 is 0. When you will put 1, it means it will give you a value 0. 0 means here. So when you will put 1, it means you will get the 0 value. Okay, and so I'm just verifying. So what I'm trying to say, I'm just saying, for in defining cos inverse x, what is the condition for defining
for defining cos inverse x, what should be the domain? Domain should be what? Domain should be -1 to 1. Okay, that is my domain. But in terms of x, because the cos inverse x is defining from this interval for this x, because we are putting all the values between minus and 1 in place of x. But here the situation is totally different. Okay, the situation is totally different. Like here the function is composition type. This is y is equal to cos inverse 1 minus 2x upon 4. It means in place of x, just because see, for finding the domain, my x is lying between which? +1 to -1. It means for being the part of the domain, the value of x should lie between -1 and 1, including -1 and 1 boundary points. So for defining the domain of this function, the situation will be same. 1 minus 2x upon 4. This will lie where? 1 and -1 by the condition of cos inverse x for defining. So what is the condition of x? Just calculate x, condition of on x. So this is 1 minus 2x, 1 minus 2x upon 4. Just I am going to multiply in every term with 4. So this is 1 into 4, this is -1 into 4, and this is also multiplied by 4. So what is the condition here? This is -4 less than equal to 4 times. So 4 is cancelled by the denominator 4. This is 1 minus 2x less than equal to 4. Now here how we will solve the equality, hope you have idea. Okay, so just subtract by -1. So this is -1 -1 again, or here also -1. So the +1 and -1 will be cancelled out. So here the remaining part is 2x, and this is 4 minus 1 3, and this is -5. This is -5. Now I'm going to multiply with -1 by 2 because I want to find the value of x. So just multiply multiply -1 by 2. When you will multiply by -1 by 2, the equality will be changed. Okay, so this is minus 2x, and I am going to multiply with -1 by 2. So the equality will change. Less than equal to is greater than. So this is 3 and -1 by 2, and this is less than -5 -1 by 2. Just calculate this and you will get the answer. Okay, so this is -5 by 2 less than equal to -1 by 2, and this is 1 by 2. This will equal to x after the calculation, and this is -3 by 2. So for finding domain, what is the domain? So this is the domain. Domain means -3 by 2 to -5 by 2. Okay, so which option is correct? Which option is correct? Which option number is correct? -3 by 2 to -5 by 2. Here we are doing any mistake here? We are doing any mistake? Please check. Please check. We are doing any mistake? This is -5. Okay, -5 and -1 by 2 multiply by +1 by 2. Okay, +5 by 2. This I was doing a little mistake here. So my domain is -3 by 2 to 5 by 2. This is option number A is correct. Okay, correct. So this is correct option. Now we are going to move second question. Okay, so what is the question? Understand first. This is example number 2. The relation are defined by greater than. Greater than means if I am comparing something like 5 and 3, so I can say 5 is greater than 3. So this is the relation
This is the condition greater than on the set of natural number. So this is the set of natural number. Hope you have idea. The set of natural number like 1, 2, 3 and so on. These are the numbers of natural numbers. So the question is, we have to understand the relation R. I am taking the relation R which is less than on the set R. Well, check the relation R is reflexive, symmetric and transitive. So for finding the reflexive, suppose we have relation R, and we can say relation R. In these relation, it is containing a set of natural number, and this is greater that is defined by the this. Okay, so suppose you have any number like for condition. What is the condition of reflexive? A relation R is reflexive. Any relation will be reflexive if A comma A belongs to R, if A belongs to A, or you can say natural number, because in this case we are taking natural number. So if A belongs to natural number, then A comma A should uh, just reflexive. A comma A belongs to R, then A comma A belongs to R. if यदि A n से आ रहा है तो A comma A R में होना चाहिए. अभी अगर A comma A को R में होना है, A comma A को अगर R में होना है, तो हम चेक कर रहे हैं कि वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर दो एलिमेंट A comma B टाइप के एलिमेंट आपके किससे आ रहे हैं, चूंकि ये नेचुरल जो रिलेशन होता है, दैट इज अ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द Cartesian product. So A comma B such that A greater than B. The relation is defined like that. Okay, that is the relation. So you can say, is A comma A is the part of the R? This is not a real number. This is simply R. So check, क्या ये A comma A R में आ रहा है? A comma A को अगर R में आना है तो उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी है? A comma A अगर R में आ रहा है तो क्या A से बड़ा होता है कभी? हाँ, इन केस A हमेशा A के बराबर होता है. A से बड़ा कभी नहीं होता है. इसका मतलब क्या है? A comma A does not belongs to R. It means R is not reflexive. I'm writing here, R is not reflexive. Okay, so reflexive तो नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है. रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. अभी हम चेक करने जा रहे हैं सिमेट्रिक के लिए. तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक, कोई भी आर रिलेशन है, आर इज सिमेट्रिक, आर विल बी सिमेट्रिक whenever, जब भी हम a कॉमा b आपका R से लें, then b कॉमा a should present in R. यदि a कॉमा b टाइप का अगर हम कोई भी R से ले रहे हैं तो b कॉमा a भी R में होना चाहिए. तो चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है R. तो हमने देख लिया R के अंदर हमारे कैसे एलिमेंट हैं. मैं दोबारा लिखता हूँ, a कॉमा b टाइप के एलिमेंट हैं जो कि n क्रॉस n से आ रहे हैं सच दैट a ग्रेटर देन b. इस टाइप के लोग हमारे R में हैं. अब मैंने कहा मान लो लेट a कॉमा b हमारा R में है. ठीक, तो मैं a कॉमा b को कोई नंबर ही ले लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. जैसे मैंने ले लिया, मैं ले लेता हूँ 3,2. ठीक है, ये हमारा R में आ रहा है. क्यों R में आ रहा है? क्योंकि 3 2 से बड़ा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आ रहा है. तो ये कह रहा है कि अगर सिमेट्रिक बनना है तो a कॉमा बी टाइप के लोग जब भी R से आए तो b कॉमा a भी R से आना चाहिए. तो इस केस में b कॉमा a क्या है? b कॉमा a है 2,3. क्या ये R से आ रहा है? क्या ये R में बिलोंग कर रहा है? इसको चेक करने के लिए हमारा पहला जो कंपोनेंट है 2, क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं है, तो इसका मतलब ये R में नहीं आ रहा है. और अगर R में नहीं आ रहा तो हम कहेंगे
R is not symmetric. R is not symmetric. So R is also not symmetric. That's great. सिमेट्रिक नहीं है। अभी ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आपको कंडीशन बताता हूँ। ट्रांजिटिविटी अगर आपको किसी रिलेशन पे चेक करना है कि वो आ, है या नहीं ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव, सी अगर ये ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई कर जाता है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रांजिटिविटी के लिए आर इज ट्रांजिटिव, अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी आर से आ रहा है, बी कॉमा सी भी आर से आ रहा है, देन ए कॉमा सी शुड कम फ्रॉम आर। तो ये चेक कर लेते हैं, इजी है। तो हमारा आर क्या था, आर हमको पता है, अगर हमने ए कॉमा बी को आर से लिया है तो वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हमने बी कॉमा सी को भी आर से लिया है अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, तो बी भी बड़ा होना चाहिए सी से। बट क्या चेक करना है हमको, क्या ए कॉमा सी भी आर से आता है? तो चेक करते हैं, लेते हैं, लेट ए कॉमा बी को हमने ले लिया जैसे 5,2, बिकॉज 5 ग्रेटर देन 2 है, ठीक, कंडीशन हो रही है। बी कॉमा सी को हमने ले लिया 2,10। नो नो नो, ये हम नहीं ले सकते। जैसे हमने ले लिया इसको, कुछ भी ले लेते हैं हम, लेट सपोज, बिकॉज हमने यहाँ पे 5,2 लिया है और यहाँ पे हमको इसके बाद ही कोई नंबर लेना है, तो क्या हम इससे छोटा नंबर ले सकते हैं? 2 से छोटा नंबर नहीं ले सकते, तो हमको बड़ा ही 2 से क्या नहीं कर सकते, 2 से बड़ा नंबर आप नहीं ले सकते क्योंकि वो फिर बी सी आपका आर से नहीं आएगा। तो देखो, इस या आपको यहाँ 1 ले सकते हो या 1 से छोटा ले सकते हो। तो उस केस में अब देखो ए कॉमा सी क्या आएगा, यहाँ से ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 1 है, तो ये हमेशा ही 5 1 से आ रहा है, तो मतलब ए कॉमा सी आर में आ रहा है। लेकिन ये हर एक के लिए होना चाहिए। तो इन जनरल हम अगर देखना चाहें तो कि सबके लिए होता है, तो जैसे देखो, अगर तुम्हारा ए कॉमा बी में ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, तो ऑब्वियसली ए बड़ा होगा सी से, और जब ए सी से बड़ा होगा तो ए कॉमा सी आपका आर में आ जाएगा। यस, देन हम कह सकते हैं ए कॉमा सी always belong to R. It means R is transitive. That's good. ये transitive हो गया, R relation ये transitive हो गया है। अब ये अगर transitive हो गया तो आपका C ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, तो ये transitive हो गया। Let's go to the another question. Okay, so this is also the question of domain. We have function fx is equal to log base 2 sin x. Okay, this is also the function of composition. First working sine function sin x and then log sin x. Okay, so this is the function of composition as the previous one. Okay, so for defining the log x, see, log x, we can understand the function of log x in terms of e to the power x or exponential function basically. So just suppose you have e to the power x is equal to y. This is also the function, exponential function. So we can say x is equal to log a base y. This is the conversion of a to the power x into log y. So in this case, the function is log 2 sin x. Suppose I am taking x as a any number p. So f, so my function is log 2p, and in this case the p is nothing but sin x. It is also the function. So for taking, it means I'm checking domain. It means
I have to calculate all the values that is working as a input for this function fx, so that my function is defined at any point and taking a unique value. Okay, so अगर हमें log को डिफाइन कराना है तो log पे क्या कंडीशन होती है, देखो मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ log x का ग्राफ कैसे होता है। log x का ग्राफ log x का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है log x का ग्राफ। ओके, और एक ये भी होता है log x का ग्राफ। तो डिपेंड करता है यहाँ पे कि अगर आप a को जो है 0 से 1 के बीच में लेते हो या a को 1 से बड़ा लेते हो। ओके, अगर आप a को 1 से बड़ा ले रहे हो इसका मतलब क्या है, a⁴x y है, और a को आप 1 से बड़ा ले रहे हो इसका मतलब आपका ये वाली चीज, ये वाला फंक्शन काम करेगा, इसके बीच में ले रहे हो तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि दोनों केसेस में ही फंक्शन log x जो है, log x कौन सी वैल्यूज एज अ इनपुट ले रहा है, यहाँ यहाँ लिखता हूँ, कौन सी वैल्यूज एज अ इनपुट ले रहा है, ये वाली वैल्यू देखो। तो इसका डोमेन क्या रहता है, डोमेन क्या रहता है, ओपन 0 to इंफिनिटी, ये डोमेन रहता है किसका, log x का। हमको चाहिए log sin x का डोमेन। log x का डोमेन तो आप जानते हैं, log sin x। हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है log sin 2x। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर a का वैल्यू 2 है तो हमारा कौन सा फंक्शन काम करने वाला है, ये वाला। यस, ओके, तो हमारा ये वाला फंक्शन काम करने वाला है। ठीक है, तो हमको पता है कि डोमेन हमारा log x का क्या है, log x का डोमेन होता है 0 to इंफिनिटी, हमने डिस्कस किया है। बट यहाँ पे हमको डोमेन देने वाला काम, log के लिए डोमेन कौन देगा, sin x। इसका मतलब sin x का फंक्शन हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू देखो ना, अगर आप log के फंक्शन में कोई भी नेगेटिव वैल्यूज डालोगे ना, आपको वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है नेगेटिव वैल्यूज पे। बट आपको पता है कि sin x का जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, किसके किसके बीच में ऑसिलेट करता है, 1 और -1 के बीच में। -1 वैल्यूज भी लेता है, +1 वैल्यूज भी लेता है। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा x ढूंढ के लाना है जो हमेशा ही 0 से बड़ी वैल्यू ले। वो 1 से आगे जाए ना जाए, क्योंकि sin x 1 से आगे तो जाएगा नहीं, sin x तो 1 तक रहेगा। तो हमको क्या करना है, हमको रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर मैं बोलूं, अगर मेरा sin x 0 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा हो जाए, तो ऐसा x निकाल के दिखाओ हमको, वही हमारा डोमेन बन जाएगा। ओके, वही हमारा डोमेन बन जाएगा। क्योंकि देखो ना, हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो हमको डोमेन भी, अच्छा, या तो हम एक काम और कर सकते हैं, या तो हम ऐसा कर दें कि वो पॉइंट ढूंढ लें जहाँ पे नेगेटिव हो रहा है फंक्शन, साइन एक्स नेगेटिव वैल्यूज लेता है, या फिर हम वो वाले पॉइंट ढूंढ लें जहाँ पे फंक्शन 0 से 1 के बीच में है। तो देखो, साइन का ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, 0, x = 0। ये कौन सा होता है, x = पाई, ये x = 2 पाई, x = 3 पाई। तो यहाँ एक चीज देख रहे हो, अगर मुझे साइन एक्स को 0 से बड़ा और 1 से छोटा करना है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा x कहाँ से कहाँ हो, 0 से पाई में हो जाए, 0 से पाई में हो जाए ओपन, क्योंकि क्लोज नहीं ले सकते, आपको 0 और पाई को हटाना पड़ेगा। और किससे ले लो, 2 पाई से 3 पाई में ले लो, 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई। यहाँ देखो, 3 पाई से आप 4 पाई नहीं ले पाओगे, देख लो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू। बट 4 पाई से 5 पाई, यूनियन 4 पाई से 5 पाई, यूनियन। अब 5 पाई से 6 पाई नहीं ले पाओगे, बट 6 पाई से 7 पाई। इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल में मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं x को 2n पाई से 2n+1 पाई, देखो यहीं से निकाल रहे हैं,
से लूं, सबका यूनियन ले लूं, n10 m बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज नेगेटिव पावर्स के लिए भी हमारा, क्योंकि साइन एक्स हमारा दोनों तरफ डिफाइन होता है, तो इस वाले पे ये डिफाइन है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये हमको लेना नहीं है, बट ये हमको लेना है इस तरह से। तो हमारा जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, देखो ना, डोमेन हमने क्या लिया है, डोमेन हमने लिया है 2n पाई से 2n+1 पाई का ओपन इंटरवल सबका यूनियन n belongs to integer. So this is the डोमेन, बिकॉज इस डोमेन पे हमारा साइन एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में है, और यही चीज हमारे लॉग एक्स को डिफाइन करने में मदद करेगा, क्योंकि अगर आप कोई और एक्स उठा लोगे ना, तो उसके लिए हमारा लॉग एक्स डिफाइन नहीं करेगा, तो इस केस में हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। फटाफट चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, let I be the set of integer, n is equal to set of non-integers. See, I is set of integer. Set of integer means -1, 0, 1, 2, 3 and so on. -2, -3 and so on. सारी की सारी वैल्यूज। सेट तो आपको पता ही होंगे होप। दिस इज n. n is set of non-negative integers. Non-negative integers means 0, 1, 2। हम नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने हैं हमको। NP means set of non-positive integers. Non-positive integers means पॉजिटिव नहीं लेने हैं, -2, -1, 0 एंड सो ऑन, सारे माइनस के और 0 इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आ गई। अब ये क्या रहा है, देन द सेट ए एंड बी सेटिस्फाइंग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। हमको हर एक ऑप्शन में ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, चेक करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और नॉट। तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 नॉट हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए सेट दिया है आई माइनस एन पी। अच्छा, आई हमको पता है, एन पी हमको पता है, तो क्या हम इस सेट में बता सकते हैं कैसे एलिमेंट हैं? हाँ हाँ, क्योंकि इसमें हमारे सारे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो भी। इसमें हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जीरो। तो मुझे अगर आई में से एनपी को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस वाले और जीरो को सबको हटाना है। तो हमारे में इसमें एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सारे के सारे पॉजिटिव। ये हमारा ए है, इसमें पहचानना ही है हमको। बी क्या है हमारा, बी हमारा है एन माइनस एन पी। देखो एन दिया है, जीरो इंक्लूडेड सारे पॉजिटिव नंबर। एनपी, एनपी में दिया है क्या, नेगेटिव वाले और जीरो, एन माइनस एनपी, एन माइनस एनपी। एनपी में कौन से लोग हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जीरो है, और एन में पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो है। तो अगर मैं एन को एनपी से हटाऊंगा या एक तरीके से घटाऊंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, तो एन में हमारे जो है क्या है, जीरो है और पॉजिटिव है। इसमें जीरो है तो जीरो से जीरो तो हट जाएगा, तो हमारे क्या आ जाएंगे, सी, हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले मैं एन के लिखता हूं, जो कि हमारे हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव है। मुझे इसमें से किन लोगों को हटाना है, माइनस एन पी को, नेगेटिव वालों को। तो अल्टीमेटली इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा जीरो को, जीरो को हटाना है मुझे। देखो जीरो इसमें था, जीरो इसमें था, तो वो हट गए, वो हट गया, तो क्या बचा, अब मुझे -1 को हटाना है। तो -1 तो इसमें है नहीं, -1 तो इसमें है नहीं, तो अल्टीमेटली वो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें वो सारे के सारे पॉइंट चाहिए जो एनपी के वो पॉइंट जो एनपी के वो पॉइंट जो एन में ना हो। क्या, एनपी के वो, एन के वो पॉइंट जो एनपी में ना हो, है ना। कहने का मतलब ये है एन के वो पॉइंट्स जो एनपी में ना हो। तो एनपी में कौन नहीं है, तो जीरो तो हट गया, तो अल्टीमेटली बी क्या आ गया हमारा सेट, 1, 2, 3 एंड ये सारे पॉजिटिव नंबर। तो कहने का मतलब वो एन के वो सारे पॉइंट जो एनपी में नहीं है। तो एनपी में कौन से पॉइंट नहीं है, एक 1, 2, 3, 4, 5 प्लस के नहीं है एनपी में, तो वो आ गए हमारे।
तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ गया, देखो ए बी सेट वही आया है, बी बी सेट वही आया है, तो इस सेट के अंदर कैसे लोग आ जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये नॉट इक्वल टू 5 आया, तो हमारा ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, अभी हम चेक करने जा रहे हैं बी ऑप्शन के लिए। बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है कि ए को आप ले लो आई माइनस एन। अच्छा, सेम, नहीं नहीं, ए माइनस एन, आई माइनस एन, सारे इंटीजर्स में से सारे ये वाले हटा दो, तो कौन से आएंगे इसमें, -2 -1, जीरो आएगा नहीं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, इसमें आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और जीरो वाले हटाने हैं। बी कैसे डिफाइन है हमारा, बी डिफाइन है आई माइनस एन पी करके। अच्छा देखो, आई माइनस एन पी को हमने पहले भी डिफाइन किया है यहाँ पे 1 2 3 करके, क्योंकि हमने आई माइनस पी को पहले इस्तेमाल किया था, वो ए के बराबर था। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट ना करके सीधा लिख देंगे कि हमारे इसमें कैसे नंबर आए थे, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर वाले। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन भी क्या होता है, होप आपको बताओ। अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं, मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी सेट है, ये पूरा ए था हमारा, ये बी था, तो ये जो पार्ट है ना, ये आएगा आपका ए इंटरसेक्शन भी, जो दोनों में हो। तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी, ए सेट आपको नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं सारे, एक आपको पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं सारे, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन आएगा, मतलब ऐसा नंबर, ऐसे पॉइंट्स या ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में भी हो और बी Hey, सेट hey, में भी hey, हो, तो listen. फाई You आ have a जाएगा। question from Chegg. ठीक Hey, है, you have a question from तो Chegg. ये Hey, you have a आपका question फाई आ from गया। Chegg. Hey, you have a डन, question from Chegg. Hey, you have a question from ओके। Chegg. फटाफट हम सी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, बी ऑप्शन देखो हमको सोल्यूशन में मिल गया है, बी ऑप्शन हमको आंसर में मिल गया है, बट अब मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। सी और डी ऑप्शन आप वेरीफाई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि ये आपके गलत हैं या सही है, बिकॉज ये आंसर बी दिया है, बट अभी मैंने ये दो ऑप्शन नहीं चेक किए हैं, तो मुझे पता नहीं है कि ये दोनों गलत हैं या नहीं। तो आइडिया पता लग गया कि हमें सेट का आइडिया लगाना है कि सेट कैसे हैं और कैसा वर्किंग सेट का हो रहा है। और देखो सिमेट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे तो इजी था, आई माइनस एन पी था। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, सिमेट्रिसिटी का मतलब बता देता हूँ, बिकॉज दोनों ऑप्शन में ही सिमेट्रिक, अगर आप दोनों सेट समझ गए कि कैसे हैं, तो ये आपके लिए निकालना बेहद ईजी है। देखो, एन सिमेट्रिक, दिस इज द साइन ऑफ सिमेट्रिसिटी, एन सिमेट्रिक एन पी, मान लो ये दिया है हमको। तो अगर मैं वेन डायग्राम से इसको समझना चाहूँ, मान लो एक सेट है हमारा, वेन डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ। दो सेट हमने लिए हैं, एक सेट ए सेट लिया है हमने और एक हमने बी सेट लिया है। ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला ए सेट है, ये बी सेट है, ये पूरा ए, ये पूरा बी। ठीक है, एसिमेट्रिक बी का क्या मतलब होता है कि ऐसा पार्ट ए का जो बी के सिमेट्रिक हो। तो बी के सिमेट्रिक कौन सा वाला पार्ट है, देखो ये वाला, ये पार्ट ए का है जो कि सेम सिमेट्रिक है बी के। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि ए सिमेट्रिक हमारा किसके बराबर होता है। अच्छा, ये पार्ट अगर मैं निकालना चाहूँ इसमें से, तो क्या मैं इसको ए माइनस बी नहीं लिख सकता, जो मैंने पहला ए को, इस वाले पार्ट को, क्या मैं ए माइनस बी, ए का वो वाला पार्ट जो बी में नहीं है, ए का वो वाला पार्ट जो बी में ना हो, क्योंकि बी में था ये वाला पार्ट, तो मैं ये हटाना पड़ा, और इस वाले पार्ट को, ये तो आ गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए। तो ये यही होता है इसका मतलब कि ए माइनस बी, ये वाला हिस्सा ए का, और बी माइनस ए, बी का ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा आ गया ए सिमेट्रिक बी। अब इस केस में क्या, कैसे एलिमेंट आएंगे इसमें, मुझे पता है एन के अंदर कैसे एलिमेंट थे हमारे, एन के अंदर सारे के सारे जीरो इंक्लूडेड पॉजिटिव, और एनपी में थे जीरो इंक्लूडेड नेगेटिव। ठीक है, तो फटाफट बताते हैं इसका सिमेट्रिक कैसा दिखेगा, एन सिमेट्रिक एनपी। चूंकि हमको पता है कि सिमेट्रिक हमें देखने हैं, तो मैं वेन डायग्राम से ही अगर सब बना लूं, तो क्या समझ पाएंगे इसको। ये हमारा एन है, ये हमारा एनपी है, इसके अंदर है 0 1 2 3 इस तरह से, इसमें है 0 -1 -2 इस तरह से। तो सिमेट्रिक पार्ट कौन सा है, सिमेट्रिक पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन ई में मैं अगर 0 को इसमें रखना चाहूँ तो ठीक है, यहाँ से हटा के, क्योंकि वो अल्टीमेटली एन में और एनपी दोनों में है ही, और 0 में भी है। बट सिमेट्रिक का क्या मतलब है, सिमेट्रिक मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
तो a माइनस बी मतलब n माइनस एन पी। n माइनस एन पी में कैसे एलिमेंट आते हैं? n के वो सारे एलिमेंट जो np में ना हो, मतलब वही एलिमेंट, क्योंकि np में यही एलिमेंट नहीं है, जीरो कुछ, क्योंकि जीरो तो है np में तो हटा दिया। अच्छा, np माइनस n, इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? np के वो एलिमेंट जो n में ना हो, np के वो एलिमेंट जो n में ना हो। तो इसमें कौन से, ये वाले एलिमेंट आपके n में नहीं है, np में है, बिकॉज जीरो था तो हटा दिया। होप ये समझ आ रहा हो। इन दोनों का यूनियन ले लो, n माइनस एन पी यूनियन np माइनस n, तो क्या आ गया? यूनियन आ गया आपका 5। तो यहाँ पे यही मतलब होगा कि ये 5 हो जाएगा। तो होप ये आपको आइडिया लगा हो कि n सिमेट्रिक np आपका दिख कैसा है। तो ये n माइनस एन पी आपका 5 आ गया, और b आपका कैसा आएगा? n माइनस एन पी आपका 5 आ गया, b आ गया i माइनस एन पी। ओके, तो ये आइडिया मैंने आपको दिया है। और अगर इसमें कोई भी माइनर छोटा मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मे बी गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हो सकती है। ओके, so and the last thing is, I'm also leaving this question for you, I guys. I hope you will try this. This is also very easy question. If you will get any error or any doubt in this question, I will discuss in the upcoming session. Okay, so I'm going to wind up this session now. If you have any doubt, then you can drop a comment in the comment box, so that I will provide the proper reasoning of your doubt. Okay, or if you can connect with me on Telegram, I'm going to share the link in Telegram so that you can get the PDF and all the information with me. Okay, bye bye, take care.